everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 6 changes around us. Today in this video we are going to discuss about these topics, the ways to bring a change, and this could be changes caused by mixing or stirring, changes caused by force or pressure, changes caused by heating. So if you are new to my channel, do subscribe and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. Now without further ado, let's start with today's class. So before getting into any topic, let us first find out what are the reasons because of which we see changes around us. So what are those reasons? We can see changes because of change in one or more of the following. हमें आसपास changes इसीलिए noticed में आते हैं because there must be a change among these in one or in many. Now what are those? Position, shape and size. There must be a change in position, shape and size, their color, physical state, temperature, composition and structure. Because of change in these, we are able to see the changes around us. Now, moving on to our first topic, that is the ways to bring a change. What are the ways or what are the different ways by which we can bring a change? That is only by mixing or only by heating, then by applying force and then by mixing and heating simultaneously. ठीक है? Next topic is changes caused by mixing or stirring. वो changes जो कि mixing या फिर stirring की वजह से होते हैं. Now mixing of two or more things together can lead to change. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम mix करते हैं तो this could bring a change. For example, sugar when mixed with water disappears and the water tastes sweet. No solid crystals of sugar are seen there. This change is called dissolution. अगर हम शुगर को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो what will we find? We will find कि जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो डिसअपेयर हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं और जो पानी का टेस्ट है वो अब स्वीट हो चुका है. अब कोई भी शुगर क्रिस्टल इंडिविजुअली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट ऑफ दैट सोल्यूशन. तो इस चेंज को क्या कहेंगे? दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. नाउ जो वाटर कंटेनिंग द डिजॉल्व्ड शुगर इज कॉल्ड सोल्यूशन. जिस वाटर में वो डिजॉल्व्ड शुगर है वो पूरा कहा जाएगा एज अ सोल्यूशन. एंड अ सोल्यूशन गिव्स प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट. और उस सोल्यूशन से ही हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं. जैसे कि जो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर वेरी इजीली, जो सब्सटेंस वाटर में बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाती हैं, सोल्यूबल हो जाती हैं, दोज आर कॉल्ड हाईली सोल्यूबल. उसी तरह जो सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन वाटर टू रीजनेबल एक्सटेंट, किसी एक रीजनेबल एक्सटेंट मतलब किसी हद तक वो डिजॉल्व हो रही है, दैट विल जस्ट बी कॉल्ड एज सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. और जो सब्सटेंसेस डिजॉल्व होती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, उसको बोला जाता है partially or sparingly soluble in water. That is, the substance which dissolve in small quantity are called partially or sparingly soluble in water. और फाइनली जो सब्सटेंस जो भी बिल्कुल ही वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इन वाटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज changes caused by force or by pressure. A push or pull acting on a body which tend to change its state of rest or motion is called force, and force is usually denoted by letter F. तो force क्या होता है? वो एक push and pull एक्ट करता है जो किसी एक बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से उसके स्टेट में चेंज आता है. स्टेट में चेंज कैसे? अगर वो रुका हुआ है मीन्स if it is at rest means वो रुका हुआ है तो it could move, it will change into its motion. And then if it is in motion, अगर वो किसी motion में है तो it could be changed into its rest position, मतलब वो रुक सकता है. तो इसी तरह से अगर उसकी
किसी स्टेट में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द पुल एंड पुश एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, देन दैट इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स को डिनोट किया जाता है लेटर F से. Now, a force can change the shape or size of any object or substance. फोर्स की वजह से या फोर्स क्या करने की कैपेबिलिटी रखता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस का शेप और साइज चेंज करने की एबिलिटी रखता है. नाउ लेट अस सी दिस स्टेटमेंट बाय लुकिंग इनटू फ्यू एग्जांपल्स. सो हियर इज द एग्जांपल्स. यू कैन सी इन्फ्लेटेड बैलून जिसका साइज बड़ा है. देन देयर इज अ डिफ्लेटेड बैलून. डिफ्लेटेड बैलून मीन्स जिसके अंदर से हवा निकल चुकी है, बिकॉज balloons get deflated when pressed within the hands, because हमने उसको अपने hand से press किया है. तब you can see the change in the size and shape of these balloons. Inflated balloon का size बड़ा है compared to that of deflated balloon. ठीक है. Also the shape will get changed once it get deflated. Now another example is of compressed sponge. तो अगर हम स्पॉन्ज को स्क्वीज करेंगे तो द शेप ऑफ दैट स्पॉन्ज विल ऑल्सो गेट चेंज. सो व्हेन वी आर स्क्वीजिंग इट वी आर अप्लाइंग फोर्स. हम स्क्वीज कर रहे हैं मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो फोर्स अप्लाई की वजह से क्या हो रहा है, उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग. अब जो हीटिंग है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो whenever any object or substance is heated, it gets affected in one or the other way. तो हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है. अगर किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो इट विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड इन वन और मोर वेज. कैसे? सर्टेन थिंग्स सिंपली गेट हॉट ऑन हीटिंग. कुछ चीज़ें सिंपली जस्ट हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है व्हेन वी आर हीटिंग इट. Certain objects or substance simply get hot on heating and do not change in other way. Example क्या है? When you cook any dish in a pressure cooker, the cooker and its handle get hot, but their shape remains unchanged. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि सिर्फ गर्म हो जाती हैं और किसी तरीके से चेंज शो नहीं करती. जैसे कि अगर हम किसी बर्तन में कोई प्रेशर कुकर में कोई डिश रेडी कर रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर कुकर है, कुकर गर्म हो जाएगा, उसका हैंडल भी गर्म हो सकता है, लेकिन कुकर का शेप या फिर साइज चेंज नहीं होगा. तो इट विल ओनली गेट हॉट एंड इट विल नॉट चेंज इन एनी अदर वे. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग. अब कुछ चीज़ें क्या होती है, अगर हम गर्म करेंगे तो दे विल स्टार्ट टू बर्न, वो जलना शुरू हो जाएगी. ठीक है. कैसे? सर्टेन थिंग्स व्हेन हीटेड गेट हॉट. इफ हीटिंग इज कंटिन्यूड दीज स्टार्ट बर्निंग. सर्टेन थिंग्स बर्न फास्टर देन others. Example, dry grass or scrap of paper burns faster than a log of wood. अब कुछ चीज़ें कैसे चेंज शो करती है व्हेन द हीट इज अप्लाइड ऑन इट, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उसके बाद भी अगर हम गर्म करते रहेंगे, उसको हीट देते रहेंगे, तो दैट विल स्टार्ट टू बर्न, वो जलना शुरू हो जाएगी. ठीक है. अब कुछ चीज़ें क्या होती है, जल्दी बर्न करती हैं कंपेयर टू अदर. जैसे कि ड्राई ग्रास, सूखी जो घास होती है वो ज़्यादा जल्दी जलेगी कंपेयर टू वुड. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्टेन थिंग्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. तो हमने पहले दो किस तरीके से हीट चेंज करा है वो हमने देखा कि पहला क्या था कि सिर्फ गर्म हो रहा है चेंज और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा. नेक्स्ट हमने देखा कि जो ज़्यादा अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चेंज कैसे शो करेगा, दैट विल स्टार्ट टू बर्न, द थिंग विल गेट स्टार्ट टू बर्न. एंड देन फाइनली अगर कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गर्म भी होती है, साथ ही में एक्सपेंड भी होती है, मीन्स उसका शेप भी चेंज होता है, उसका साइज भी चेंज होता है. लेट्स सी. ऑल सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग. जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर कोई हीट करने पे थोड़ा सा एक्सपेंड करता है.
Now this is on heating, there is an increase in their size. On cooling, they return to their original size. So heating and cooling any object is reversible change. This process of heating cooling finds many useful applications in industries. For example, in fixing iron rim on bullock cart wheel. तो अब क्या हो रहा है, अगर हम जब गर्म करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, अगर हम कूल कर रहे हैं तो उसका साइज फिर से डिक्रीज हो जाएगा. तो कूलिंग और हीटिंग का जो ये प्रोसेस है उसको हम एक रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं. रिवर्सिबल चेंज मतलब वो चेंजेस जिसको दोबारा लाया जा सकता है. मतलब अगर एक बार वो चेंज हो चुके हैं तो उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है. वैसे चेंजेस को कहा जाएगा रिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, तो अब क्या होगा, कूलिंग और हीटिंग की वजह से हम जो भी चेंजेस हमें मिलेंगे दैट कुड बी रिवर्सिबल. बिकॉज जब हम हीट करते हैं तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जब हम कूल करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज़ में दोबारा आ जाएगा. तो ये जो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका एप्लीकेशन है. कैसे, जैसे कि जो आयरन रिम होता है, बुलक कार्ट का जो व्हील होता है उसके अंदर जो एक आयरन रिम बिठाया हुआ होता है, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन. कैसे, बुलक कार्ट्स हैव वुडन व्हील्स. बुलक कार्ट्स के लकड़ी के व्हील्स होते हैं. दीज वुडन व्हील्स आर फिटेड विथ आयरन रिम्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर. तो ये जो वुडन व्हील्स होते हैं उसको आयरन व्हील के अंदर बिठाया जाता है, आयरन रिम के अंदर बिठाया जाता है, जिससे कि वो जो व्हील्स है वो बहुत दिनों तक टिकाऊ रहें. ठीक है. Now the iron rim or the iron tire is made slightly smaller than the diameter of the wooden wheel. The iron rim is heated in dry drunk cake fire. Due to the rise in temperature, it expands. तो अब जो वो आयरन रिम है, जो कि आयरन का जो एक टायर है जिसके अंदर हमें वो वुडन का व्हील फिट करना है, वो आयरन रिम यूजुअली उसके साइज से वुडन व्हील के साइज से छोटा बनाया जाता है. अब जब आयरन रिम को हीट किया जाता है तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज की वजह से वो आयरन का जो रिम है दैट विल एक्सपेंड, उसका साइज बढ़ेगा. दिस आयरन हॉट आयरन रिम इज देन पुट ऑन द वुडन व्हील. अब जैसे कि उसका साइज बढ़ गया तो अब वो वुडन व्हील के साइज की तरह हो गया, तो अब वो वुडन व्हील के साइज के ऊपर बिठा दिया जाएगा एंड उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाएगा एंड देन कूल्ड बाय पोरिंग वाटर ओवर इट. अब जैसे कि हमें पता है कि हीट करने के बाद अगर हम ठंडा करते हैं तो वो जो सब्सटेंस है, जो वो ऑब्जेक्ट है, वो अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में रिटर्न हो जाएगा. दैट इज ऑन कूलिंग द आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स द व्हील फर्मली. तो जब वो कूल ठंडा हो जाएगा तो वो अपने ओरिजिनल साइज में जैसे वापस आ चुका है तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा और जो वुडन व्हील था जिसके ऊपर उसको बिठाया गया था उसको बहुत ही टाइटली होल्ड करने की एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी रखेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ हीट कैन बी यूज टू ब्रिंग द चेंज एंड ऑल्सो इन इट्स कमर्शियल पर्पस. क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.